ناظرین السلام علیکم. پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے جب بھی اختیار کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، اس صورت کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بدلہ لیتے۔ آغاز سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ 9 اگست کو نظام آباد اربن کا ریاستی وزیر KTR کریں گے دورہ، ITF سمیت کئی جدید عمارتوں کا کریں گے افتتاح، ارکان اسمبلی نے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ نظام آباد پر چڑھا گلابی رنگ، ریاستی وزیر کے دورے کے پیش نظر گلابی پرچم و کٹ آؤٹس، اربن MLA کی قیادت میں تیاریاں مکمل۔ اقلیتوں کو فیکس 1 لاکھ کی مالی امداد، 16 اگست سے چیکس حوالے کیے جائیں گے، ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی IT وزیر KTR کے ضلع آمد پر انتظامات مکمل، ضلع کے تمام علاقوں کا ضلع قائدین عہدیداروں کا جائزہ، پورا شہر گلابی رنگ میں تبدیل۔ نظام آباد شہر میں کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا ریاستی IT وزیر KTR کے ہاتھوں کل افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ ضلع میں KTR کے آمد کے موقع پر انتظامات کا ریاستی RTC چیئرمین باجی ریڈی گورنر، اربن MLA گنیش گپتا، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، پولیس کمشنر پروین کمار، میئر ڈی نیتو کرن، میونسپل کمشنر مکرند کے ہمراہ جائزہ لیا گیا، جس میں سب سے پہلے ضلع کلکٹریٹ کے احاطے میں تعمیر کیے گئے IT ہب کا IT وزیر KTR کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد نائک بلڈنگ، ڈبہ، ورنی روڈ، ارسا پلی علاقوں میں تعمیر کیے گئے شمشان گھاٹوں کا افتتاح کیا جائے گا، اور تعمیری نو میونسپل بلڈنگ، قلعے کے رگھوناتھ تالاب کے منی ٹینک بانڈ کے افتتاح کے بعد میونسپل مزدوروں کے ہمراہ سرکاری راما گارڈن میں کام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ضلع MLAs، ضلع کلکٹر، میئر نے ان تمام علاقوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ IT وزیر کی حیدرآباد سے نظام آباد ہیلی کاپٹر کے ذریعے آمد متوقع پر ضلع کلکٹر کے میدان کے ہیلی پیڈ کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو مشورے دیے، سخت بندوبست کے انتظامات عمل میں لانے، ٹریفک میں خلل نہ ہونے کی پولیس کو تاکید کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ درپلی ZP TC باجی ریڈی جگن، ایڈیشنل DCP جیارام، ACP کرن کمار، AD شیکر، دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اقلیتوں کو فی کس 1 لاکھ روپے کی مالی امداد، 16 اگست سے چیکس حوالے کرنے وزیر فائنانس تلنگانہ ہریش راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ حکومت نے اقلیتوں کو فی کس 1 لاکھ روپے مالی امداد کی تقسیم 16 اگست سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ اقلیتوں کی بہبود کے حصے کے طور پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے اعلان کردہ 1 لاکھ روپے کے مالی امداد پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ پہلے مرحلے کے تحت اس مہینے کی 16 تاریخ سے 10,000 منتخب مستحقین میں 1 لاکھ روپے کے چیکس کی تقسیم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ سیکریٹریٹ میں وزیر فائنانس ہریش راؤ کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اقلیتوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں وزراء ہریش راؤ، محمود علی، کوپلا ایشور، گنگولا کملاکر، تالاسانی سرینواسا یادو، ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ، مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، چیف سیکریٹری شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکریٹری
फाइनेंस डिपार्टमेंट के रामकिशन राव, अखिलती सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर ओहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। अखिलियतों को 1 लाख की माली इमदाद, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप, कब्रस्तानों के लिए जमीन के अलाटमेंट, आइमा मौजदीन को एजाजिया देने और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जदीद तरीन तकनीक व सहूलतों से आरास्ता कायम करदा IT हब का 9 अगस्त को रियासती वजीर IT KTR करेंगे इफ्तिताह। दिगर कई मुकामात पर इफ्तिताही तकारीब में शिरकत और जलसे आम से करेंगे खिताब। निजामाबाद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, शहर पर छाया गुलाबी रंग। अर्बन MLA बीगला की क़यादत में प्रोग्राम्स की तैयारियां व तरतीब। 9 अगस्त बरोज चारशंबा निजामाबाद के कलेक्ट्रेट के करीब कायम करदा जदीद IT हब का रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही। शहर के तमामी चौराहों और रास्तों पर गुलाबी परचम और कटआउट्स व इस्तेकबालिया कमाने सजाए गए। सुबह ठीक 11:15 पर रियासती वजीर KTR हेलीकॉप्टर के जरिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। पहले वो IT हब का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में कलेक्ट्रेट के इहाते में हेलीपैड तैयार किया। IT हब के आगाज के बाद नियाब बिल्डिंग दुब्बा में तामीर करदा कॉरपोरेशन भवन, वर्नी रोड पर वाक़ शमशान घाट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरसापल्ली शमशान घाट, तमाम जदीद इमारतों का इफ्तिताह रियासती वजीर अंजाम देंगे। इफ्तिताही तकारीब के बाद पॉलिटेक्निक में रियासती वजीर KTR जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती वजीर KTR के दौरे के पेश नजर शहर को BRS गुलाबी परचमों और कटआउट से खूब सजाया गया और तमाम तर तैयारियां अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता की क़यादत में BRS कायदीन ने अंजाम दी। प्राइवेट एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशान करने की कोशिश पर अवाम पुलिस से रुजू। बांसवाड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस वाले प्राइवेट दवाखाने वालों से कमीशन के लिए गरीब मरीजों को परेशान कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CI महेंद्र रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की ज्यादतियां जबरदस्तियों से सरकारी दवाखाने के अहाते में एम्बुलेंस ड्राइवरों मरीजों में मुसलसल झगड़े करते हुए मरीजों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। टाउन CI महेंद्र रेड्डी का बयान। एम्बुलेंस ड्राइवर्स अमराज से परेशान मरीजों को इनके अपने मौके प्राइवेट अस्पताल ले जा रहे हैं। इन दिनों एम्बुलेंस ड्राइवरों में कमीशन का लालच बढ़ने लगा है, जिससे परेशानी में मुब्तला मरीजों को और परेशान कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बांसवाड़ा टाउन CI महेंद्र रेड्डी ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स ओनर्स सरकारी जूनियर कॉलेज के अहाते में मीटिंग मुनक्किद करते हुए इन्हें अपनी हदों में रहते हुए एम्बुलेंस को सीरियल नंबर के जरिए अस्पताल के बाहर तैयार रहने का मशवरा दिया। सीरियल नंबर के जरिए ही गाड़ियों को लाने पर जोर दिया। सब ड्राइवर्स दवाखाने के अंदर आते हुए मरीजों से जबरदस्ती करने पर एक्शन लिए जाने की बात बताई। सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज गरीब घराने के मरीज होते हैं। किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाना जबरदस्ती लालच में आकर प्राइवेट अस्पतालों को पहुंचाकर परेशान करने पर सख्ती से निपटा जाएगा। एम्बुलेंस ड्राइवर्स ओनर्स को CI महेंद्र ने इंतबाह दिया। अगर सरकारी एम्बुलेंस की सही सहूलत न दिए जाने पर मरीज फौरी पुलिस डिपार्टमेंट से रुजू होने का मशवरा दिया। బాన్స్వాడ పట్టణంలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు మరియు అంబులెన్స్ వాహనాల యొక్క ఆర్సీలు అదేవిధంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు అన్నీ కూడా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా తనిఖీ చేసి అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇక్కడ అంబులెన్సులు అక్రమంగా నడిపిస్తున్నారో అదేవిధంగా అంబులెన్సులు ఎవరైతే ఆర్సీ లేకుండా తర్వాత ఎటువంటి కరెక్ట్గా క్రమ పద్ధతులు లేకుండా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా క్రమ పద్ధతిలో ఉండే విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ ఒక్క అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కూడా బాన్స్వాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి తీసుకుపోయే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఓనర్ కానీ ఫస్ట్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలకు వాళ్ళు పిలవకుండా ఎవరు కూడా లోపలికి వెళ్ళకూడదు. అదేవిధంగా బాన్స్వాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి రెఫర్ అయిన ఏ పేషెంట్ కూడా కామారెడ్డి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే 2000 రూపాయలు, బోధన్ ఆసుపత్రిలోకి తీసుకెళ్తే 1000 రూపాయలు, నిజామాబాద్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే 1500 రూపాయలు, హైదరాబాద్కు రెఫర్ అయితే 5500 రూపాయలు అనే రేట్ను MLC के कविता की फराख दिली से
गरीब नौजवान का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद है। अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए एक गरीब खानदान के नौजवान को तमाम अखराजात दिए जाने का तय हुआ। MLC के कविता ने फिर एक बार बड़े पैमाने पर माली अमदाद के तयक्कुन के साथ अपनी फराखदिली का सबूत दिया। शहर के एक गरीब खानदान के नौजवान रितीश को आला तालीम के लिए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सीट हासिल हुई, लेकिन इस नौजवान के वालिद की कम आमदनी होने पर के कविता MLC के इल्म में लाने पर इन्होंने रितीश के अमेरिका जाने के तमाम अखराजात को देने का तयक्कुन दिया। गरीब नौजवान के खानदान वालों ने इस मौके पर MLC के कविता का इजहार तशक्कुर किया। रियासत भर में ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों का एहतजाज 34वें रोज में दाखिल। गांव में गंदगी फैलने लगी है। हुकूमत सफाई मजदूरों के मसाइल की फौरन यकसुई करे। मंडल सफाई मजदूरों का एहतजाज। दरपल्ली मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के अहाते में गुज़िश्ता 34 रोज से ग्राम पंचायत मजदूरों की हड़ताल जारी। इस हड़ताल कैंप में इनकलाबी शायर गदर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जी सुनीता रामड़गु सायम्मा ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत सफाई मजदूरों के मसाइल की फौरी यकसुई अमल में लाए। हड़ताल के 34 रोज मुकम्मल हुए, लेकिन हुकूमत को सफाई मजदूरों की कोई परवाह नहीं। हम रोजाना एक अनोखे अंदाज में एहतजाज अमल में ला रहे हैं, फिर भी रियासती हुकूमत सफाई मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आज सफाई मजदूरों ने हड़ताल कैंप में रक्स करते हुए मुनफरिद अंदाज में एहतजाज अमल में लाया। రామడుగు సాయమ్మ మద్దరిపల్లి ఆట వాడుతున్నా ఒకటి దయచేసి కేసీఆర్ గారు మా గురించి ఆలోచించి మేము మోలు తీస్తున్నాము, కుక్కలు చచ్చిపోయినా అందులు చచ్చిపోయినా ఏది చచ్చిపోయినా మేము తీస్తున్నాము. మాకు అన్నం తినాలంటే కూడా తినబుద్ధి అయితే లేదు. ఎవరైనా ఇంటికి పోయినా కానీ కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వమ్మ అంటే దూరం ఉండి అటు రమ్మ అటు ఉండి అమ్మంటారు, నీళ్ళు కూడా ఇయ్యరు. మాది అది పరిస్థితి. కానీ మా పరిస్థితి ఆలోచించి మా ప్లేస్లో ఒక్క రోజు నువ్వు ఆలోచించి మా న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మేము మురికి తీస్తున్నాము, ఏది చేసినా సాగుకాడికి మేమే పోతున్నాము, ఏదైనా మేమే పోతున్నాము. ఈ పని ఎవరు చెయ్యరు. మేమేమి కోరికలేము కోరుతలేము, మాకు లక్షలు అడుగుతలేము. మేమేదో మా కడుపు తిప్పాల కోసం, మా కడుపు నిండా అన్నం కావాలా, మా పిల్లలు బతకాలా, మా పిల్లల భవిష్యత్తు కావాలని మేము ఇదే ఆశ పెట్టుకుంటున్నాం, ఇదే కోరుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ సార్ మాకు న్యాయం చేసి కొద్దిగా దయచేసి నీ బిడ్డలు అనుకో, నీ కొడుకులు అనుకో, నీ కడుపులో పుట్టిన పిల్లలు అనుకొని దయచేసి మా గురించి ఆలోచించి మాకు జీతాలు పెంచాలని మనవి చేసుకుంటున్నాను నేను. कामयाब तदरीस के जरिए बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाहा हाई स्कूल फिजिक्स टीचर अब्दुल सलाम की खिदमत के अवाज बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल। स्कूल हेडमास्टर विठल का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन के जिला परिषद हाई स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले फिजिक्स टीचर अब्दुल सलाम को बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। हैदराबाद के उर्दू एकेडमी की क़यादत में इन्हें शालपोशी करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर बांसवाड़ा हाई स्कूल हेडमास्टर विठल ने अपने स्टाफ के हमरा अब्दुल सलाम को गुलपोशी शालपोशी करते हुए तहनीत दी। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर विठल ने बात करते हुए बताया कि अब्दुल सलाम टीचर ने बेहतर खिदमत के जरिए हमारे स्कूल के नाम को रियासती सतह पर रोशन किया। आइंदा भी इसी तरह खिदमत अंजाम देते हुए बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करते हुए कामयाबी से हमकनार करें। इस प्रोग्राम में सीनियर असातिज़ा और दीगर भी मौजूद थे। సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు శ్రీ అబ్దుల్ సలాం గారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉర్దూ అకాడమీ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా ఎన్నికైనందుకు వారికి మా పాఠశాల తరఫున శుభాభివందనలు తెలియజేస్తూ వారి యొక్క సేవలు మరింతగా మెరుగుపరుచుకొని విద్యార్థులకు వారి భావి జీవితాన్ని नंदीपेट के नंदी किशोर मंदिर के पास कूड़ा क्रिकेट डाले जाने पर मुकामी बीडीसी कमेटी की ताजिरों पर बरहमी। मुकामी पंचायत से फौरी कचरे की निकासी करते हुए गांव में साफ सफाई का ख्याल रखने बीडीसी का मशवरा। नंदीपेट मंडल मुस्तफर के नंदी चौरास्ते के सामने ताजिरीन की जानिब से कूड़ा क्रिकेट गंदगी बढ़ जाने से मुकामियों ने बरहमी जताई। इस मौके पर बीडीसी कमेटी मेंबरान डी श्रीनु जी संतोष ने बात करते हुए बताया कि बहुत ही अहमियत रखने वाले नंदी किशोर मंदिर से इस गांव को नंदीपेट के नाम से शोहरत हासिल है। इसलिए मुकामियों ने इस मंदिर के करीब ग्रेनाइट पत्थर के जरिए नंदी मुजस्सिमे को यहाँ नस्ब किया।
ऐसे खुसूसी जगह पर गांव के ताजिरों की जानिब से यहां कूड़ा क्रिकेट डालते हुए गंदगी फैलाए जाने पर बरहमी जताई और मुकामी ग्राम पंचायत अहदेदारों से गांव की साफ सफाई पर ध्यान देने और गांव को साफ रखने का मुतालबा किया। దీన్ని వ్యాపారస్తులు మొత్తం ఖరాబ్ చేసి చెత్త చెదరం వేసి ఈరోజు నంది విగ్రహం దగ్గర ఆసన స్మెల్ వస్తుందని చెప్పి వ్యాపారస్తులు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి చెత్త పడేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నాం మేము. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర వాళ్ళకు బుట్టీలు ఇచ్చినాము గ్రామ పంచాయతీ నుంచి, అక్కడ బుట్టీలు వేసుకోవాలా, లేకపోతే తీసుకపోయి ఎక్కడన్నా దూరం దగ్గర పడేయాలి. కానీ దైవస్థానం దగ్గర నంది విగ్రహం దగ్గర పడేద్దని కోరుకుంటున్నాము. వ్యాపారస్తుల ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాం, ఇంకోసారి పడేస్తే మాత్రం బాగుండదు. దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. మండలంలో కానీ గ్రామంలో కానీ ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపారవేత్తలకు విజ్ఞప్తి, మీరు నంది విగ్రహం దగ్గర ఇలాంటి చెత్త పడేయడం వల్ల వాసన వస్తుంది. మీరు వెంటనే ఇలాంటి వాటిని తొలగించడానికి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఉంది. తొలగించడానికి ట్రాక్టర్లు 2 ఉన్నాయి. లచ్చన నియమించడం జరిగింది. దానికి ఇన్ఛార్జ్గా మీకు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి బుట్టిలు ఇవ్వడం జరిగింది. మీ చెత్తను మీ షాప్ల దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇలా చెత్త పడేయడం వల్ల దుర్వాసన వస్తుంది. దీన్ని లక్షలు వేచించి మేము నంది విగ్రహం ఏర్పాటు చే इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 अगस्त को निजामाबाद अर्बन का रियासती वजीर केटीआर करेंगे दौरा। ITF समेत कई जदीद इमारतों का करेंगे इफ्तिताह। अरकान असम्बली ने तैयारियों का लिया जायजा। निजामाबाद पर चढ़ा गुलाबी रंग, रियासती वजीर के दौरे के पेश नजर गुलाबी परचम व कटआउट्स। अर्बन एमएलए की क़यादत में तैयारियां मुकम्मल। अक़लियतों को फीकस 1 लाख की माली इमदाद 16 अगस्त से चेक्स हवाले किए जाएंगे। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के लिए देखते रहे परवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।